संयुक्त नित्यं जायन्ते योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः प्रभाव निरुद्ध निराकार। प्रवचन सार पुराण गाथा કરીને ટીકાથી જેવો જીવ પુરાણક અસમાન જાતિ પર્યાયનો એમ કેમ ન લીધું જીવની પર્યાયને પકડતા પર્યાય બુદ્ધિ વાળા પર્યાયને પકડતા એમ ન લીધું કેમ કે પર્યાયને પકડી શકતો નથી અજ્ઞાની. એથી ભગવાન અમરચંદ્રાચાર્ય પર્યાય બુદ્ધિ વાળાની દ્રષ્ટિએ અસમાન જાતિ પૂતગલ ઉપર જાય છે. એને એ દેખી શકે, માની શકે, જાણી શકે. હા, નહીતર પર્યાય બુદ્ધિમાં તો દ્રવ્ય ગુણથી ઉત્પન્ન થયેલી પર્યાય એમાં એવું ને. આ તો અસમાન જાતિ મિથ્યાત્મા નાખે, પર્યાય બુદ્ધિ ને નહીં. શું કહ્યું સમજાણું? હા તે કહ્યું છું કે પર્યાય એક સમયની છે એની પકડી શકે નહીં. એથી પર્યાય દ્રષ્ટિ વાળાની દ્રષ્ટિ શરીર ઉપર અસમાન જાતિ શરીર ઉપર જાય છે. એથી એને પર્યાય બુદ્ધિ વાળાને પર્યાયની દ્રષ્ટિ છે એમ ન લેતા પર્યાય બુદ્ધિ વાળાને અસમાન એવી શરીર જાત એની દ્રષ્ટિ છે એમ લીધું છે. હા હા હા, સમજાય છે કાંઈ? અમરચંદ્રાચાર્ય એમાં એની ભૂલ કાઢવી કે આને આમ કેમ ન કહ્યું. નહીં તો પર્યાય પાઠ તો એવો લીધો પહેલી ગાથામાં કે વિસ્તાર સામાન સમુદાય આયત સામાન સમુદાય એનો પિંડ તે દ્રવ્ય અને અનંત ગુણનો એક આધાર તે દ્રવ્ય. તેથી ગુણાત્મક અથો દવનો દવ ગુણ શું અને પર્યાય બે થી ઉત્પન્ન થયેલી. એ તો પોતાની પર્યાય પોતાથી ધર્મને ગુણથી ઉત્પન્ન થયેલી. તો પર્યાય દ્રષ્ટિમાં પર્યાયને ન લેતા અસમાન જાતિ શરીરને લીધું, યથાર્થપણે લીધું છે. હા, કેમ કે અજ્ઞાનીની પણ પર્યાય ઉપર એક સમયની પર્યાય પકડી શકતો નથી. એથી અહીં પર્યાયનું લંબાઈને શરીર ઉપર એની દ્રષ્ટિ જાય છે. હા હા હા, સમજાય છે કાંઈ? જીવ અને પૂતગલ સ્વરૂપ અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાયનો આ દ્રવ્ય પર્યાય લીધી. એની પોતાની દ્રવ્ય પર્યાય વ્યંજન કે અર્થ પર્યાય ન લીધી. હા હા ભાઈ, નહીતર દ્રવ્ય પર્યાય વ્યંજન પર્યાય છે. કેવડીની જ્યાં વાત લીધી છે જો જાણી અનંત દવત ગુણ પછી તેની પર્યાય વ્યંજન પર્યાય છે લીધી અને અર્થ પર્યાય લીધી છે કેવળ જ્ઞાન આદિ. હા હા, અહીંયા તો અહીંયા કહેવાનો એમનો આશય આ છે કે ભાઈ જેને દ્રવ્ય સ્વભાવ ત્રિકાળી ની દ્રષ્ટિ નથી, વિનાયક ધ્રુવ સ્વરૂપ પ્રભુ પરમાનંદ મૂર્તિ નિત્યાનંદ પરમ સ્વભાવ ભાવ એની જેને દ્રષ્ટિ નથી એની દ્રષ્ટિ શરીર ઉપર જાય છે. સમજાણું કાંઈ? જે પોતાની જાત નથી એવું આ જડ, એની જાત આત્માની જાત થી આ તો જત બીજી જાત છે. હા હા, જેવો જીવ પૂતગલ સ્વરૂપ અસમાન જાતિ
દ્રવ્ય પર્યાય, એને દ્રવ્ય પર્યાય કીધી. બધામાં એમ દ્રવ્ય પર્યાય કીધી હતી ને પ્રાણોમાં. દ્રવ્ય એને કહ્યું કે સામાન્ય વિશેષ ગુણ અને પર્યાયનું પિંડ તે દ્રવ્ય. ગુણ એને કહીએ કે દ્રવ્યને આશ્રય જે અનંત ગુણ છે છતાં એકને આશ્રય એ ગુણ. પર્યાય એને કહીએ કે જે દ્રવ્ય પર્યાય અને ગુણ પર્યાય. દ્રવ્ય પર્યાયના બે પ્રકાર. એક અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય, એક સમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય. ત્યાં સમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાયમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને ભાઈને પંડિત, એમ કે ત્યાં આત્માને કેમ ન લીધો? સમાન જાતિમાં પદવીઓને લીધા. કે સમાન જાતિ અને આત્માને કઈ ખરેખર એક રૂપ ખંડપણું નથી. એકપણું તો પરમાણુમાં નથી, પણ પરમાણુના ખંડને પિંડ કહેવાય છે. શરીર આદિ પિંડ ખંડ. એથી એને દ્રવ્ય પર્યાયમાં અસમાન જાતિ આત્મા અને શરીરની અસમાન જાતિને દ્રવ્ય પર્યાય લીધી, અને સમાન જાતિમાં પરમાણુના પિંડને દ્રવ્ય પર્યાય લીધી. પરમાણુના ખંડની અવસ્થાને દ્રવ્ય પર્યાય લીધી. ગુણ પર્યાય તો પછી સ્વાભાવિક ગુણ પર્યાય, વિભાવિક ગુણ પર્યાય એ તો અનુરૂપ સ્વભાવની સ્વાભાવિક પર્યાય. અને જ્ઞાનાદિ અને રૂપાદિમાં પૂર્ણમનમાં નિમિત્ત થતા એનાધિક અવસ્થા થાય છે, અને નિમિત્ત પણ એમાં કર્મનું છે. એ દશાને વિભાવ ગુણ પર્યાય કીધી. વિભાવ ગુણ પર્યાય. અહીંયા ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય આમ ઉપાડ્યું કેમ કે એ પર્યાય બુદ્ધિ વાળો દ્રિકાળી સ્વભાવને તો જોતો નથી, પણ એના ગુણને જોતો નથી. તેમ એક સમયની પર્યાયને પકડી શકતો નથી. ઓહો, શું શાસ્ત્રની ગંભીરતા! દિગંબર સંતોની શૈલી ગજબ છે. એના જ્યાં ઊંડા પેડ જોવા જઈએ ત્યાં એમ લાગે ઓહો. એને બતાવવું છે તો આખું ધ્યેય દ્રવ્યનો સ્વભાવ આશ્રય બતાવવો છે. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય આત્માને ત્રણ છે એમ કહેશે છેલ્લે. અસંકીર્ણ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય વડે સૂચિત છે ભગવાન છેલ્લા છે ને બે લીટી. એવા આત્માના સ્વભાવનો દ્રવ્યગુણ પર્યાય છે ખરી. પણ એનો જે ત્રિકાળી સ્વભાવ છે ભગવાન પૂર્ણાનંદ ધ્રુવ વિનાયક ભાવ, એની એને સંભાવનાનો અભાવ છે. કે જે સકળ જ્ઞાનનું મૂળ વિદ્યાનું એનું એના જ્ઞાનીનો અભાવ છે. સમજાય છે કાંઈ? અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાયનો કે જે સકળ વિદ્યાઓનું એક મૂળ છે. અજ્ઞાન અને મિથ્યા સકળ અવિદ્યા એનું એ મૂળ છે. પર્યાય બુદ્ધિમાં સમાન જાતિ શરીરને પોતાનું માને છે, એની ક્રિયા થાય પોતાનું માને છે. લોકોના મનુષ્ય વ્યવહારમાં એ તો ક્રિયાદિશી. શું કીધું? આત્મ વ્યવહારમાં એની પર્યાય, અને મનુષ્ય વ્યવહારમાં હું મનુષ્ય છું, દેવ છું એમ દિશી. મનુષ્ય વ્યવહારમાં અને એમાં છું એ ઠીક, પણ છમાં જે રાગ દ્વેષની પરિણામ ક્રિયા છે એ ક્રિયાને એક પણ માને છે. સાચી એમ. સકળ વિદ્યાનું એક મૂળ છે. પર્યાયની દ્રષ્ટિમાં પર્યાય પકડી શકતો નથી, તેથી તે અસમાન જાતિ દ્રવ્ય એને પોતાને પકડે જાણે છે. એટલે લક્ષ તેનું શરીર ઉપર જાય છે, અને તે શરીર મારું છે એવી જે બુદ્ધિ
એ સકળ અવિદ્યાનું મૂળ છે. મહામિથ્યાત અને અજ્ઞાનનું એ મૂળ છે. સમજાય છે સાહેબ? સકળ અવિદ્યાનું એક મૂળ છે, તેનો આશ્રય કરતા થતા શરીર હું આમ બે એક છે, હું મનુષ્ય છું, દેવ છું, એવી માનતા હો, એવી જે આશ્રય કરતા થતા યથોક્ત આત્મ સ્વભાવની સંભાવના. હવે યથોક્ત એટલે યથાઉક્ત, જ્યાં વિસ્તાર સામાન ને આયત સામાનનું પિંડજી દ્રવ્ય કહ્યો, એ યથોક્ત એનો સ્વભાવ દ્રવ્યનો. શું કહ્યું? યથોક્ત આત્મ સ્વભાવની સંભાવના, યથાઉક્ત દ્રવ્ય એને કહ્યું કે જે અનંત સામાન, વિસ્તાર સામાન સમુદાય અને આયત સામાન સમુદાય તે દ્રવ્ય, એ દ્રવ્યનો એટલે એ દ્રવ્યના આત્મ સ્વભાવની સંભાવનાનો અનુભવ કરવાને નપુંસક હોવાથી એ અસમાન જાતિ ઉપર દ્રષ્ટિ પડીને એ જ મારું સ્વરૂપ છે એને માનીને અવિદ્યાનું મૂળ જે છે એ આત્મ સ્વભાવ જે કહ્યો કે દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય એના કીધા, પણ એ આત્મદ્રવ્ય છે, એ ગુણ અને પર્યાયનો પિંડ આખો અખંડ, એવા જે દ્રવ્ય સ્વભાવની વાત કરી હતી. યથોક્ત યથાર્થ નામ કહ્યું આત્મ સ્વભાવની સંભાવના, એવો જે આત્મ સ્વભાવ અનંત ગુણ અને અનંતી પર્યાયનું એક રૂપ દ્રવ્યથી આત્મ સ્વભાવ તે વસ્તુ, એની સંભાવના, એનો અનુભવ. સંભાવના ઘણા કર્યા છે. સંચેતન એનું ચેતનો અનુભવ કરવો, માનતા આદર. ભગવાન આત્મા અનંત ગુણ, વિસ્તાર સામાન અને અનંત પર્યાય લંબાય આજ સામાન એ દ્રવ્ય વસ્તુ છે. વસ્તુ એ વસ્તુના સ્વભાવની સંભાવના, એ વસ્તુની સ્વભાવની માનતા, એ વસ્તુના સ્વભાવનું સંચેતન જાગૃત થવું, એમાં તેનો અનુભવ કરવો, એને પોતાનું માનવું, એના કરવાને અનુપોષક છે કે અરે એ વીર્ય જે છે એનું અસમાન જાતિને પર્યાય બુદ્ધિમાં ત્યાં જતા એને પોતાનું માને એવી માનતા, એ નપુંસક છે. એ વીર્યને ત્યાં રોક્યું છે. એ રોકેલું વીર્ય એ વાસ્તવિક વીર્ય નથી. એ નપુંસકતા છે. ગમે એ કરે, ધંધા છોડીને બેઠા કલકત્તાના માટે થઈ ગયું, થઈ ગયું. એનો દાખલો નહીં. નવચંદ્ર છે અંદરમાં યથોક્ત દ્રવ્ય સ્વભાવની અનુભવ ના કરવાને અસમર્થ. આ તો વિતરાગની વાતો છે બાપા. આ શું કહી, એના પૂર્ણ રહસ્ય તો સંતો જાણે, કેવળી જાણે. કે છે કે એવું પર્યાય બુદ્ધિ એટલે સમાન જાતિઓનો આશ્રય કરતા યથોક્ત આત્મ સ્વભાવનો આશ્રય કરવો જોઈએ. આશ્રય કરવો કહો કે અનુભવ કરવો કહો કે સંચેતન આત્મદ્રવ્ય જેવું છે તેવું ચેતવું, સંચેતન કહો, એની માન્યતા કહો કે આત્મ સ્વભાવનો અનુભવ કહો, એવું અનુભવ કરવાને નપુંસક હોવાથી
ગજબ વાત કરી છે. એને કઈ પડી છે સમાજ સમતુલય રહેશે કે નહીં, સમાજમાં બેસશે કે નહીં? બાપુ બહાર ગયા છે ભાઈ. ભગવાન આત્મા પૂર્ણ સ્વભાવ, એનો જે અનુભવ ને એનો આશ્રય ને એનું સંચેતન જાગવું, એનો અભાવ છે એ નપુંસકતા છે કે છે. જે વીર્ય દ્રઢ સ્વભાવને અવલંબીને દ્રઢ ત્રિકાળી જ્ઞાયકનો અનુભવ કરે, તે મર્દ છે, તે મર્દનો વીર્ય છે. એ આત્માનો એ વીર્ય છે. આવી વાતો હવે બધી એક આવીને પ્રસૂતિમાંથી કરી નીકળીને આમાં આવવું. આ તો પરમ સચ છે પ્રભુ. જગત મારી મેળ ન ખાય એથી કઈ અસત્ય થઈ ન જાય. પરમ સત્ય પ્રભુ. આવો જે ભગવાન આત્મ સ્વભાવ છે, ભલે આત્મા દરેક ગુણ પર્યાય સ્વરૂપ, પણ એનો દરેક સ્વભાવ છે, એનો જે અનુભવ જોઈએ, એનો અનુભવ કરવાને નપુંસક છે. અને મનુષ્ય દેહ આદિ ઉપર લક્ષ કરીને તેનો અનુભવ કરવાને ઉદાર છે, એ નપુંસક છે. આવી વાતું છે. દિગંબર સંતો ગજબ કામ કર્યા. કેવળીને ભૂલાવી દે. પાંચમા એવી વાત ક્યાં છે પ્રભુ? જેમાં ભવનો અંત આવે એવી દ્રષ્ટિ કરી નથી, આત્મ સ્વભાવનો અનુભવ કર્યો નથી. ભગવાન પૂર્ણાનંદ જ્ઞાયક આવ્યું ને, વિદ્વજનો ભૂતાર્થ તજી, ત્યાં એમ કહ્યું વિદ્વાનો નિશ્ચય છોડીને વ્યવહારમાં વર્તે છે. 58 શ્લોકમાં નિયમસારમાં 58 શ્લોક છે, પણ છે 41 ગાથાનો. શું કહું? 41 ગાથામાં ક્ષાયક ભાવ પણ જીવમાં નથી એમ કીધું છે. એથી એ ગાથામાં આમ નાખ્યું કલશ 58માં. જેનમાં ક્ષાયક ભાવ નથી પ્રભુ. આત્મંદર સ્વભાવ તો જો, આત્મંદર સ્વભાવમાં ઉદય ભાવ તો નથી, ઉપશમતો નથી, સુપશમતો નથી, ક્ષાયક નથી. એવો જે આત્મંદર સ્વભાવ, એને વિદ્વાનો પંચમ ગતિને પ્રાપ્ત માટે પંચમ ભાવને સ્મરે છે. અહીંયા આને વિદ્વાન કીધા. ઓલામાં વિદ્વાન એને કીધા કે શાસ્ત્રમાંથી વ્યવહાર ગૂંથીને કાઢ્યો, નીચે પડ્યો રહ્યો. મંગલાચરણ. લમો અરિહંતાળમ લમો સિદ્ધાળમ લમો આયરિયાળમ
ळमोऽध्यायाणं ळमोलोये सवसा ऊढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दिदं धोदघायिकममलं पडमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। गुरुवाणी मंथन शिविर के द्वितीय दिवस में सबसे पहले हमने समय सार कलश के आधार से गुरुदेव श्री को सुना और अभी यहाँ पर एक बार फिर हमने प्रवचन सार ग्रंथ की 94 नंबर की गाथा उसके मर्म को समझने का प्रयास किया। कल का लगभग 15 मिनट का व्याख्यान कल रात में जो हमने सुना था और अभी लगभग 20 मिनट के व्याख्यान में उन्हीं 2 लाइनों पर गुरुदेव अपनी संपूर्ण चर्चा को केंद्रित किए हुए हैं, जो कि टीकाओं में सबसे प्रारंभ में अमृत चंद्राचार्य ने प्रस्तुत की हैं। कौन सी हैं वो 2 लाइनें? असमान जाति ये जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय का, है ना, असमान जातीय द्रव्य पर्याय का अवलंबन लेने वाला और आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से। बस इन 2 लाइनों पर ही बात चल रही है। लगभग 40 मिनट का व्याख्यान कल का और आज दोनों का मिला लें तो इतना हो चुका है। कुछ चीजें देखिए गुरुदेव की शैली में बड़ी अंतर्गर्भित हैं कि गुरुदेव कभी भी मूल आचार्यों को छोड़कर इधर से उधर जाकर बात नहीं करते। वर्ड टू वर्ड, एक एक पंक्ति पंक्ति का, एक एक शब्द का, उसका शब्द सहा अर्थ करना। और जैसा कि अभी पंडित जी साहब बता रहे थे कि पहले उस शब्द का अर्थ करना और फिर उस शब्द से लिंक करके उसके आगे पीछे के वाक्यों का अर्थ करना। अब ये सब काम हो कैसे पाता है? यदि वो बात जो मैंने कल भी कही थी कि यदि उस लाइन से, उस पंक्ति से स्वयं को एकाकार ना किया जाए, क्योंकि अच्छा व्याख्यान यही है ना, एक वक्ता की मूल जिम्मेदारी यही बनती है जब वो यहाँ पर आचार्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठा हुआ है। जैसे कि लोक में होते हैं ना सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि। अब सांसद प्रतिनिधि को यदि हमने किसी कार्यक्रम में भेजा और वो सांसदों की मूल मान्यता या उनकी विचारधारा से इतर कुछ कार्य करके आ जाए या कोई वक्तव्य देकर आ जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? वो कैसा प्रतिनिधि है? ऐसे ही यहाँ पर यदि किसी एक वक्ता की जिम्मेदारी बनती है तो वो क्या बनती है कि वो किन का प्रतिनिधित्व कर रहा है? आचार्यों का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। अब देखिए व्याख्यान जब पूरा हुआ और आपके दिमाग में वक्ता स्ट्राइक करने लगा, समझ में आया? और तत्व तो स्ट्राइक किया नहीं, आचार्य स्ट्राइक नहीं किया और हम वक्ता के मुरीद हो गए, उसके भाषा शैली के, उसकी उतार चढ़ाव के, उसके लौकिक दृष्टांत इत्यादि के। तो फिर हम अल्टीमेटली ये पूछते हैं कि मूल बात क्या थी? यदि ये पूछा जाए तो फिर हमें क्या याद आता है? हमें यही याद आता है ना कि क्या उदाहरण दिए, क्या दृष्टांत दिए, कैसी शैली थी, कैसा हंसाया, कैसा गुनगुनाया, है ना, यही सब चीजें याद आई। तो फिर बताओ कि वो जो प्रतिनिधित्व करना था आचार्यों का, वो कितना सार्थक साबित हुआ। अब जब गुरुदेव श्री जब वो 2 लाइनों पर लगातार मंत्रणा कर रहे हैं, आप चाहें ना चाहें, लेकिन आपके दिमाग में वो पंक्तियां स्ट्राइक किए बिना रहेंगी नहीं कि जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय का अवलंबन लेकर क्या कहा? आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से।
अब आत्म स्वभाव की संभावना में, संभावना से क्या क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं वो भी हमने यहां पर देखा। तथा सबसे शुरू में एक बात आई थी जो कि कल की चर्चा में नहीं आई, और वो प्रश्न ये था कि यहां पर असमान जाति पर्याय को लेकर जो पज्जयेषु निर्दा, इस वाली पंक्ति का अमृत चंद्राचार्य ने अर्थ क्यों किया। मूल गाथा में लाइन क्या है, जो पज्जयेषु निर्दा, यानी जो पर्याय में रत है। पर समय की व्याख्या हो रही ना पहली वाली लाइन में। पहली वाली लाइन क्या है, देखो हम लोगों की दूरियां इतनी हो गई हैं शास्त्रों से, आगम से। अभी जैसे मैं किसी को ये टास्क दे दूं, आप लोगों से ये अपेक्षा करूं कि एटलीस्ट आप एक बार पूरी गाथा और टीका पढ़कर आएं। यदि हम पहले से पढ़े हुए होंगे तो फिर आगे जो गुरुदेव चर्चा करने वाले ना एक एक पंक्ति की, कई बार क्या होता है वो उस पंक्ति के बीच से लास्ट में भी जंप करते हैं। यहां पर भी उन्होंने किया था कि द्रव्य गुण पर्याय की असंकीर्णता, ये वाली लाइन की तरफ वे गए थे और उस लाइन की चर्चा करते हुए उन्होंने बोला था आगे जाकर ये कहेंगे। अब हम क्या है, हम रिलेट कब कर पाएंगे आसानी से उन पंक्तियों से, उन शब्दों से, जब एक बार हमने उस पूरी की पूरी टीका का अवगाहन किया हो सरसरे फौरी तौर पर। कुछ हमें अपने स्तर पर एक्सरसाइज करना पड़ेगी। लोक में भी कोई बच्चा यदि किसी कक्षा को अटेंड करके आता है, ये जो नीट वगैरह की तैयारी करने कोटा जाते हैं, तो वो सिर्फ इतने तक सीमित नहीं होता कि जो 2 घंटे 4 घंटे वो लेक्चर में सुन के आया है और बात पूरी हो गई। उसके आगे पीछे की भी जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज माने उसके बारे में पढ़ना, उसे अपने से समझने का प्रयास करना। जब हम ये सब चीजें करते हैं ना, तब जाकर जो कही जाने वाली मूल बात है, उसका जो मर्म है, उसे ग्रहण करने में आसानी होती है। लेकिन यहां हमारी परिपाटी कुछ ऐसी बन पड़ी है कि यहां पर तो सीधे हम लोगों का एक ही काम है, वो उस निर्धारित समय पर वहां उपस्थित होना है ना। हालांकि उस निर्धारित समय में उपस्थित होने में भी हम बहुत आगे पीछे आनाकानी करते हैं, है ना। उसमें भी शुरू का 10-15 मिनट गायब कर दिया, है ना, बीच में से चले गए, या गुरुदेव का हिस्सा नहीं सुना और बाद में यहां आकर बैठ गए। ऐसा सब करेंगे तो फिर गुरुवाणी मंथन शिविर का जो मूल उद्देश्य है वो कैसे पूरा हो पाएगा। एटलीस्ट इन 2-2.5 घंटों का जो हमारा सेशन चल रहा है, उन 2-2.5 घंटों में तो अलर्ट एंड अटेंटिव रहना पड़ेगा ना, उतने उसमें तो सजगता हमें दिखानी पड़ेगी। तो देखो, जब यहां पर बात की थी गुरुदेव ने जो पज्जयेषु निर्दा, और उस पज्जयेषु निर्दा की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने असमान जाति पर्याय को खड़ा किया, और गुरुदेव ने प्रश्न किया था कि एक समय की पर्याय को क्यों नहीं लिया। और इस पर 2-3 बार उन्होंने जोर डालकर बात कही, क्यों नहीं लिया एक समय की पर्याय को। ये अज्ञानी जीव के सामने जो एकत्व खड़ा हो रहा है, उसमें किसको लिया, असमान जाति। मतलब ये पूरी जो देह है ना, जिस शरीर सहित हम हमारी इस पूरी लाइफ को स्पेंड करने वाले हैं, आगे जाकर ये शरीर बदल जाएगा, तब जो पर्याय, मतलब वहां भी कोई ना कोई असमान जाति पर्याय प्राप्त होगी। क्या कारण था, एक पर्याय की असली स्थिति तो एक समय की है, लेकिन उस एक समय की पर्याय को क्यों नहीं लिया। पकड़ में नहीं आती है ना। 2-3 बार ये बात कही, तो वास्तव में हम समझाने के लिए किस बात को लिया जाएगा, वो पूरी होल, मतलब संपूर्ण समग्र पर्याय जो थोड़ी लंबायमान है, अपेक्षाकृत है, वो भी क्या कहते हैं, है वो भी अनित्य, ध्रुव वो भी नहीं है। ये असमान जाति पर्याय में भी ध्रुवत्व नहीं है, ध्रुवत्व का अभाव इसमें भी है, और ध्रुवत्व का अभाव उस एक समय की पर्याय में भी है। लेकिन चूंकि एक समय की पर्याय को पकड़वाएं कैसे, द्रव्य को तो पकड़ता ही नहीं है, गुणों को पकड़ता ही नहीं है, और साथ में एक समय की पर्याय को भी नहीं पकड़ता। तो आखिर हम लोग हमारी उस निर्दा, जो पज्जयेषु निर्दा, इस पर्याय में आसक्ति का को बताने के लिए किसे खड़ा किया गया, पूरी की पूरी असमान जाति पर्याय को। और असमान जाति पर्याय में मैं पने का जो बोध वर्तता है, वो कैसा वर्तता है, वो प्रति क्षण वर्तता है या कुछ क्षणों का ब्रेक उसमें आ जाता है, वो तो निरंतर वर्त रहा है। तो वास्तव में चोट तो करना है वो प्रति क्षण वर्तने वाली अहम बुद्धि पर, लेकिन वो प्रति क्षण वर्तने वाली अहम बुद्धि का अवलंबन क्या है, समझ में आया। देखिए, अज्ञान चूंकि मेरा स्वभाव नहीं है, क्यों नहीं है स्वभाव, क्योंकि वो परावलंबन से होता है। जो परावलंबन से ना हो वो ही स्वभाव होता है ना।
तो ऐसे ही ये भी पर समय जीव का जो अज्ञान है वो उसका स्वाभाविक परिणमन है कि वैभाविक परिणमन है? वैभाविक परिणमन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो किसी न किसी के अवलंबन से पैदा होता है। अब ये बताइए कि ये जो अज्ञान है, आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक बनाने वाला जो अज्ञान है, समझ में आए ना, उसका कारण, उसका अवलंबन कौन है? एक समयवर्ती पर्याय को नहीं लिया, किसे लिया? असमान जाति पर्याय। तो ये असमान जाति पर्याय यानी देह हुआ उस अज्ञान का अवलंबन, लेकिन उस अज्ञान की निरंतर वर्तने वाले प्रवाह के कारण हो क्या रहा है? आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से। समझ में आया? एनेस्थीसिया लग जाता है जब, तो उस समय के लिए तो ऐसा होता होगा ना कि हमारा इस असमान जाति जीव पुद्गलात्मक असमान जाति पर्याय में हमारी अहम बुद्धि चली जाती हो। हमारे वहां भोपाल में एक परिचित व्यक्ति थे, उनका पुत्र था, है ना, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मतलब काफी सर में चोट आई और उसके कारण से वो ऑलमोस्ट 25 दिन तक वो होश में नहीं था। 25 दिन तक वो होश में नहीं था। मैं आपको ये उदाहरण बताना चाहता हूं कि हमारी अपने जिस नियत किसी विषय में जो प्रवृत्ति होती है वो कितनी गहरी भीतर में छुपी होती है। 25 दिन बाद जब वो होश में आया, समझ में आया ना, तो मालूम उसने उठते के साथ क्या बोला? 25 दिन बाद उठते के साथ, उठते से बोलता है राजश्री दो। क्या बोलता है? राजश्री समझते हैं? गुटखा आता है, गुटखे का पैकेट। अब आप सोच रहे हो 25 दिन तक होश में नहीं था। उसके माता पिताओं ने ऐसे माथा कूट लिया कि यदि सबसे पहले मम्मी का नाम लेता, पापा का नाम लेता। उसने मालूम क्या मांग रहा है शुरू में उठते के साथ? अब बोलो 25 दिनों में वो कितना निरत हो गया है कि उठते के साथ होश में आते के साथ क्या मांग रहा है? सबसे पहले वो गुटखा मांग रहा है। आप सोचो, ये मैं फैक्ट बात बोल रहा हूं, 1% भी इसमें झूठ नहीं है, एकदम सही बात है। मुझे वास्तव में तब ये लगा, उसकी तो उस प्रवृत्ति के ऊपर जो भी है, जो भी कहना था उसे कहने की बात जाने दो। हम लोग भी मान के चलो कि एक ऐसी स्थिति हमारे साथ आती है और कईयों जन्मों तक रहती है। कईयों जन्मों इन द सेंस, यदि मान के चलो ये जीव निगोदी अवस्था में चला गया और वहां पर यदि कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ यदि वही निगोद 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 में वर्त रहा तो उसका कितना अधिकतम काल 2.5 पुद्गल परावर्तन है ना। यदि लगातार निगोदिया जीव रहे, ऐसा ही कुछ काल है ना। कितना? वो विकलत ने वो सब जाने दीजिए, मैं तो वहां था। यदि निगोद में रहता रहे तो अभी कभी ये सवाल खड़ा नहीं होता, वो निगोदिया जीव की तो कोई बुद्धि नहीं है, समझ में नहीं आता, तो ऐसा वो कैसे अपनी उस प्राप्त पर्याय यानी असमान जाति पर्याय में वो निज बुद्धि कर कैसे लेता है? जबकि एक श्वास में तो वो 18 बार जन्म मरण कर रहा है। अब एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना आप समझ रहे हैं? यदि हम एक श्वास को 1 सेकंड माने, हालांकि 1 सेकंड से भी छोटी होती है, लेकिन यदि हम उतना माने तो आप मान के चलो कि सेकंड में क्या 18वां भाग जो है ना उसका एक जन्म का पर्याय है, एक जन्म का और मरण का। पूरी असमान जाति पर्याय का काल कितना हुआ निगोदिया जीव की? अब आप सोचो उतने से काल में उसकी क्या निज बुद्धि चलती होगी, जबकि बुद्धि तो कुछ है ही नहीं। तो ये कब चलती है? कहते हैं कि वो जब कभी भी निकलेगा ना, अभी वहां पर उसकी असमान जाति पर्याय में निज बुद्धि की अभिव्यक्ति देखने में नहीं मिल रही, जैसे हम लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलती है। लेकिन वो जब कभी भी निकलेगा ना, आपको वहां पर मुखर होते हुए दिख जाएगी। वो जब भी निकलेगा, 2 इंद्रिय बन गया, 3 इंद्रिय बना, 4 इंद्रिय बना, 5 इंद्रिय बना, तो जब आपको क्या दिखेगा? इसका मतलब 2.5 पुद्गल परावर्तन में वो ऐसा कोई क्षण आया था जब उसने अपनी असमान जाति पर्याय में निज बुद्धि को छोड़ दिया हो। तो ये कैसे पता चला? जब वो मुखर हुआ, जब वो असमान जाति पर्याय में निजत्व का बोध मुखर हुआ, तो हमने पता लगाया कि ये उस अवस्था में भी पड़ा हुआ था ना, तो ऐसी ही अहम बुद्धि के साथ पड़ा हुआ था। ऐसे ही हम लोगों को एनेस्थीसिया लग जाए, 15-20 दिन हम कोमा में चले जाएं, तो कोमा में निकलने के बाद याद दिलाना पड़ेगा कि भाई तुम मनुष्य हो, तुम पुरुष हो, समझ में आया? या और भी जो चीजें हमने हमारी असमान जाति पर्याय के अवलंबन से जो हमारी धारणा, जो मान्यता हमने बना रखी है, उसे याद दिलाने के लिए क्या करना पड़ता है?
इसका मतलब थी वो, मुखर नहीं हो रही थी। समझ में आया? तो इसलिए यहां किसका अवलंबन लिया गया? एक समय की पर्याय को क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक समय की पर्याय पकड़ में नहीं आती है, और उस शरीर के लिए किए जाने वाले सारे हमारे कृत्य इस बात को साबित करते हैं। ता उम्र जीवन भर एक क्षण के लिए भी हम वास्तव में, यहां देखो गुरुदेव श्री ने क्या क्या बातें कही थी। वो जो आत्म स्वभाव वाली बात थी ना, पेज नंबर, हाँ ये 974 नंबर के पेज पर, जहां पर ये आयत सामान्य और विस्तार सामान्य वाली जो बात आई थी, यहां पर देखिए पेज नंबर निकल गया। यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना, है ना, इसका देखिए अर्थ करते हैं। यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना अर्थात यथा 94, हाँ बस यही आ गया, थोड़ा सा और ऊपर करिए। यथा प्लस उक्त, हमने जो द्रव्य कहा, अर्थात कौन सा द्रव्य कहा? पिछली गाथा में। यथोक्त मतलब क्या होता है? देखो एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यथोक्त को भी ऐसे चलता हूं मैं जाने नहीं दे रहे हैं कि यथोक्त की बात नहीं की जाए, क्योंकि एक एक पंक्ति यदि रखी गई है ना, तो वो वहीं होने के लिए बनी थी। आगम में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि कोई हमें जबरदस्ती में कोई चीज रख दी गई हो। अच्छा आप लोग कभी विचार करो, द्वादशांग के शब्दों में एक कम और एक बढ़ाया जा सकता है क्या? उतने के उतने हैं। इसका मतलब जो शब्द जहां होने के लिए नियत है वो वहीं रहेगा, उधर से कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। यदि कम हो जाएगा तो भी वो आगम नहीं, और ज्यादा हो जाएगा तब भी वो आगम नहीं। इसलिए जो एक शुद्ध उच्चारण है ना, जैसा आचार्यों ने कहा है, लिखा है, उसे वैसा का वैसा बोलना, ये मंत्रों की ताकत होती है, गाथाओं की अपनी एक शक्ति होती है, हर सूत्र की एक पावर होती है। देखो अब तत्वार सूत्र में अनावश्यक कोई शब्द डाला नहीं, और कोई ऐसा शब्द जो वहां होना चाहिए था और नहीं किया हो, ऐसा भी नहीं हुआ। ये सूत्रों में, सूत्रों की रचना इसी तरह से की जाती है। ऐसे ही एक एक शब्द, चाहे वो टीकाओं का, आचार्यों का, वो भी ऐसा ही है, तब जाकर वो आगम सम्यक ज्ञान कहलाता है। कौन ने कहा है ऐसा? समंतभद्राचार्य ने। समझ में आया? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात निस्संदेहम वेद यदाहुस्तज्ञानमागमिना। आगम किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? अन्यूनम, जो कम नहीं हो, अनतिरिक्तम, जो ज्यादा नहीं हो, है ना, याथा तथ्यम, जो तथ्य हो वैसा का वैसा हो, और बिना च विपरीतात, और जो विपरीत ना हो, उसे ही क्या बोलते हैं? यद आहू। आहू मतलब जैसा कहा गया हो, उसे ही क्या बोलते हैं? आगम। अब यदि यहां पर अमृत चंद्राचार्य यथोक्त ये शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो लोग वक्ता की जिम्मेदारी ये भी होती है कि नहीं उस यथोक्त को भी बताए। और गुरुदेव ने कहा ना, यथोक्त मतलब क्या? जैसा कहा गया है। अब जैसा कहां कहा गया है? जस्ट बिफोर, इससे जस्ट एक गाथा पहले क्या कहा गया था? द्रव्य गुण पर्याय की सर्वांगता, उसकी सर्वांगीण समझ प्रस्तुत की गई थी। क्या समझ पैदा की गई थी? उस गाथा को भी गुरुदेव ने इस गाथा में याद किया। अथो खलु दव्व महो, है ना, दव्वाणी गुणप गाणी भड़ीदाणी ते सिम पुण पज्जाया पज्जय मूड़ा ही पर समया। इसकी पहली लाइन प्रयोग की थी कि द्रव्य अर्थ कैसा होता है? द्रव्यमय है। द्रव्य कैसा है? गुणमय है, और उन्हीं गुणों की पर्याय होती है। ये हुई वस्तु की सर्वांगीण समझ। अब हमने क्या किया? यथोक्त, है ना, जो द्रव्य कहा, हमने जो द्रव्य कहा, कैसा कहा था वो द्रव्य? अनंत सामान्य, यानी विस्तार सामान्य समुदाय और आयत सामान्य समुदाय, वह द्रव्य। ये क्या होता है? आयत सामान्य, विस्तार सामान्य। विस्तार सामान्य के लिए है ना गुण वाला, और आयत सामान्य मतलब, ये क्यों कहते हैं आयत सामान्य और विस्तार सामान्य? ये सब चर्चा है आगे। ये प्रवचन सार की इसी ही फिलोसॉफिकल समझ के लिए, है ना, हाईली एकेडमिक ग्रंथ होने के चक्कर में ये दुनिया के सड़सड़ देशों में पढ़ाया जाता है। और ये ऐसी मजाक में बोली जाने वाली बात नहीं है, वाकई में पढ़ाया जाता है। समझ में आया ना? मैं लंदन की कॉन्फ्रेंस में गया, तो वहां पर मैंने देखा कि एक कैलिफोर्निया से
एक प्रोफेसर थी, है ना, ही इज नॉट अ जैन इवन, मतलब वो क्या थे, वो बहुत सारे प्रोफेसर्स आए थे, कुछ पेरिस के भी थे, कुछ कहीं और के थे, तो वो लोग जैन तो छोड़ो, इंडियन भी नहीं थे, भारतीय भी नहीं थे, लेकिन वो सब लोग लघु तत्व विस्फोट के ऊपर अपना शोध प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जैन जिन्होंने लघु तत्व विस्फोट देखा नहीं है और वो वाकई में इंडियन भी नहीं, मैं तो नाम बता सकता हूं, एना वेजेल, जेरोम पेट्रेट, उन लोगों के तो नाम याद हो गए, उनका तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना। ये लोग जैनोलॉजी, इंडोलॉजी के मास्टर हैं। और इन लोगों से जब बाद में अलग से डिस्कशन चला तो उन्होंने बोला कि प्रवचन सार से बेस्ट एकेडमिक लेवल का कोई ग्रंथ नहीं है दर्शन की दुनिया में, दर्शन शास्त्र में, क्योंकि फिलॉसफी के 3 हिस्से माने जाते हैं, है ना, एक होता है एपिस्टेमोलॉजी, एक होता है मेटाफिजिक्स और एक होता है एक्सियोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी यानी होता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा मतलब मैं कौन हूं, जब ये बात की पड़ताल की जाए तो वो क्या कहलाती है, ज्ञान मीमांसा। मेटाफिजिक्स यानी संसार क्या है, समझ में आया ना, तत्व मीमांसा बोलते हैं इसे। और एक्सियोलॉजी यानी होता है मूल्य मीमांसा, कि आचरण कैसा हो। प्रवचन सार में तीनों चीजें हैं, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा भी है, मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा भी है, और एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा भी है। पहला अधिकार आपको यह बताता है तुम कौन हो, सुख क्या है, ज्ञान क्या है, तो हो गई ना ज्ञान मीमांसा, नाम भी उसका ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है। दूसरा अधिकार बताता है दुनिया क्या है, अर्थ क्या है, वस्तु क्या है, विषय क्या है, तो उसकी समझ कैसे पैदा होती है, द्रव्य गुण पर्याय से, तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन मेटाफिजिक्स। और कहते हैं मैं कौन हूं, संसार क्या, ये जानने के बाद क्या करें क्या, अल्टीमेटली करना क्या, ये देखना है ना। तो क्या कहते हैं आचार्य, एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे, करना क्या है, पड़ीवज्जदु सामण्यम जदि इच्छदि दुख परिमुखम, करें क्या, श्रामण्य अंगीकार करो। अब और क्या, सब समझ में आ गया है तो समझ में आया। और इस श्रामण्य अंगीकार करने के लिए ये बात लिखी गई थी। ये बात वो कहते हैं कि इससे वो लोगों को ये बात समझ में आ गई है, दुनिया भर में लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर तो ठीक है, कुछ कहा कुछ सुना, बाद में पूछा क्या कहा क्या सुना पता नहीं, कुछ कहा कुछ सुना, हो गया बात खत्म। आप गुरुदेव की दृष्टि से देखें, हमारे यहां सिर्फ बौद्धिक प्रबलता के लिए इन शास्त्रों की रचना नहीं की गई है। और आचार्य कुंद ने भी इसका विजन बता दिया था। ये प्रवचन सार भी मैं कह रहा हूं तो किस लिए, सिर्फ समझ बढ़ाने के लिए नहीं, उपसंपयामि सम्मम, काय के लिए कह रहा हूं, समता की प्राप्ति हो, मैं साम्य भाव में स्थित हूं, साम्य भाव मेरा परम उपादेय है। साम्य भाव मतलब वीतरागता। तो जब मैं दुनिया को भी समझा रहा होऊंगा ना, वहां भी मैं क्या बता रहा हूंगा, उसका भी उद्देश्य क्या होगा, समता की अभिवृद्धि, उपसंपयामि सम्मम, साम्य भाव की प्राप्ति, यही एकमात्र उद्देश्य है। तो ऐसे में देखो, जब एक एक पंक्ति का अर्थ किया जा रहा है तो उसमें किस चीज को मुख्य किया जा रहा है, वही कि हमारा अज्ञान कैसे हमारी नासमझी के कारण और प्रबल होता चला जाता है, और किसकी संभावना को नकारते हैं। जब जब इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व स्थापित किया तो किसकी संभावना से इंकार किया, आत्म स्वभाव की संभावना। देखो, आत्म स्वभाव की संभावना को बताने के लिए कहा कि द्रव्य की संपूर्ण समझ क्या है, विस्तार सामान्य वाला और आयत सामान्य वाला। आयत सामान्य को ही बोलते हैं प्रवाह क्रम, और विस्तार सामान्य को कहते हैं विस्तार क्रम। अभी 99, 100 और 101 नंबर की गाथा आएगी, उसमें ये चर्चा आने वाली है। गुरुदेव श्री के 99, 100 और 101 नंबर की गाथा पर जो हुए प्रवचन है ना, वो इतने अपने आप में अद्भुत और अल्टीमेट हैं कि उनके नाम पर एक अलग पुस्तक बनाई गई। नाम तो पता होगा, पदार्थ विज्ञान, है ना। मात्र वो पुस्तक किन प्रवचनों पर है, 99, 100 और 101, पदार्थ विज्ञान। समझ में आ रहा है, साइंस। आप समझ रहे, पदार्थ किसे बोलते हैं, भौतिक वस्तुओं को कहते हैं ना लोक में, लेकिन जैन आगम कहता है कि अकेला भौतिक वस्तुएं ही नहीं है पदार्थ, आत्मा भी एक पदार्थ है। और अकेला उन भौतिक वस्तुओं का ही विज्ञान नहीं होता है, आत्मा का भी कोई विज्ञान है। और इस पदार्थ विज्ञान को जानकर करना क्या है, जब आपने पदार्थों की सम्यक समझ पैदा की तो क्या करना है,
अरे इतना सा काम करना है, अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, बस काम तो यही करना है। पूरी दुनिया की समझ पैदा करके करना क्या है, यही मूल काम तो करना है ना। तो कहते हैं वो पूरी अखंड वस्तु कैसी थी, यथोक्त द्रव्य कैसा था, कैसा था वो द्रव्य, कहते हैं वो तो विस्तार सामान्य वाला और आयत सामान्य समुदाय वह द्रव्य, उस द्रव्य का आहा है ना, देखो उस द्रव्य का अर्थात द्रव्य का अब किस पे आ जाना है, द्रव्य का आत्म स्वभाव की संभावना अर्थात अनुभव। उस संभावना को क्या लिया, अनुभव। संभावना क्या होगी, संभाव्य को संभव बनाने की कला जैन दर्शन सिखाता है। क्या समझ में तो नहीं आया, संभाव्य को जो चीज संभव हो सकती है ना, जो कुछ पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है उसे तो कहता है दृष्टि भी मत करो वहां पर, जो चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो चीज पॉसिबल है उसे पॉसिबल बनाना, समझ में, उसका नाम जैन दर्शन है। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है, क्या है वो, आत्म स्वभाव की संभावना। आत्म स्वभाव की संभावना यानी आत्म अनुभव। ये पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है। अभी बारंबार दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है। बात कठिन है लेकिन असंभव नहीं। कठिन क्यों है, तो उसका बताया कि अभ्यास नहीं होने से, सीधी बात। वो सरल कठिन कुछ होता ही नहीं है। कठिन क्या है, जो हमें नहीं आता वो कठिन है। तो हमें क्या नहीं आता, जिसकी हमें रुचि नहीं होती। बोलो, रोटी बनाना सरल है कि कठिन? अब ये पुरुषों से पूछो है ना, उनसे पूछो कि गोल रोटी बनाने को समझते हैं, पता नहीं कैसे हो जाता है ना। यदि खुद बनाने की कभी चेष्टा करें तो पता नहीं कौन कौन से नक्शे बनते हैं। तो अभी बोलो सरल है कि कठिन है? अरे वो चीज क्यों नहीं सीख पाए? अब कई बार कुछ पुरुष सीख जाते हैं क्योंकि मजबूरी आन पड़ती है। आपके पास कोई उपाय नहीं है, बाहर पढ़ने के लिए बच्चों को भेज दिया। अब यदि नहीं बनाओगे तो जियोगे कैसे, है ना। हालांकि आजकल वो संभावना भी नगण्य हो गई है क्योंकि सब बाहर का खाने लगे हैं, है ना। लेकिन पहले जो कोई यदि सदाचारी बच्चा हो तो उसे तो खुद ही बनाना सीखना पड़ता था। तो सरल कठिन वास्तव में कुछ नहीं है, जिसका अभ्यास नहीं है। अभ्यास हमें किसका नहीं होता, जिसकी हमें रुचि नहीं होती। टोडरमल जी ने ये सारी चर्चा की कि हमें किन चीजों का अभ्यास नहीं होता है, और यदि इसका अभ्यास होगा तो कब होगा, जब हमें ये अपना कार्य लगेगा। क्योंकि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। अभी पहले ये बताओ, ये पढ़ने में, सुनने में, इसका विचार करने में मन कब लगेगा, जब ये अपना कार्य लगेगा। अब अपना कार्य नहीं लगेगा ना तो कितना ही प्रयास करते रहो। यहां एक गुरुवाणी मंथन नहीं 50 लगा दो, लेकिन हमारी परिपाटी बदलने वाली नहीं है। क्योंकि हम तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं एग्जाम देने के लिए बैठा हूं, है ना। क्योंकि लोग बाग तो अपनी धारणाएं और मान्यताएं पहले से ही सेट किए हुए बैठे हैं, और फिर वो चेक करते हैं, हाँ मेरी धारणा पर सही है, टिक, राइट, और धारणा पर सही नहीं है तो क्रॉस। और बस ऐसे ही सही गलत सही गलत सही गलत, बाकी बदलाव कुछ नहीं लाना है ना। फिर यहां पर भी आकर भी चेक क्या हो रहा है, हाँ इसे सुनते हैं, चलो कोई दूसरा पंडित बुलाओ, चलो किसी और ग्रंथ पे लो। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं, हम टेस्ट कर रहे हैं पंडितों का। और क्या कर रहे हैं, और क्या, ये ठीक है कि नहीं, बस यही जिंदगी बीत जाएगी इसमें। पहली चीज तो क्या है कि पंडितों के जरिए अपनी नाव को पार लगाने की सोच को खत्म करो, क्योंकि वो तिरने वाली है नहीं। ये 3, साढ़े 3, 4 दिन में आपको कुछ बहुत समझ में आ जाए, क्योंकि वाणी जो है बहुत लिमिटेड है। भले हम 40-40 मिनट बोलें, 1-1 घंटे, 1.5-1.5, 2-2 घंटे आप एक टाइम सुनो, 2 टाइम में 4 घंटे होंगे ना, तब भी क्या लगता है आपको आगम का कितना हिस्सा प्रस्तुत हो पाएगा? अभी यहां पर 2 लाइनों की चर्चा करते हुए गुरुदेव को 40 मिनट हो गए, समझ में आया। और इन्हीं 2 लाइनों की चर्चा करते हुए हमको लगभग 70-75 मिनट हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, इन 2 लाइनों से पूरा जिनागम का सर्वांगीण समझ पैदा हो सकती है? ये तो सिर्फ ये छोटे छोटे उपक्रम जो किए जाते हैं ना, ये मात्र प्रेरणा के लिए किए जाते हैं। प्रेरणा मतलब स्टार्टर। हम लोग खुद अपने आप से सेल्फ स्टार्ट हो जाएं, और सेल्फ स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारे मन में जागृत होना चाहिए कि ये क्या है विस्तार सामान्य, क्या है आयत सामान्य, क्यों द्रव्य गुण पर्याय की समझ के ऊपर इतना जोर डाल रहे हैं।
हमारी अनादि अज्ञान यानी असमान जाति पर्याय में पड़ी हुई निज बुद्धि को, अहम बुद्धि को तोड़ने में द्रव्य गुण पर्याय की समझ इतनी जरूरी क्यों होती है? अब इसके लिए कौन को तैयार होना पड़ेगा? स्वयं ही होना पड़ेगा ना, प्रतिदिन का अभ्यासी होना पड़ेगा ना, प्रतिदिन का स्वाध्यायी होना पड़ेगा ना। प्रतिदिन की सभाओं में हम नहीं आते, प्रतिदिन गुरुदेव श्री को सुनने के लिए तत्पर होना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा उन गुरुदेव की सूक्ष्म दृष्टि। आजकल दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती यह है, लोग बाग कहते हैं वो मुमुक्षु हैं। क्यों? उनके पिताजी मुमुक्षु थे, उनके दादाजी मुमुक्षु थे। आजकल लोगों के घर जाओ तो वो भी यही बोलते हैं, हमारे दादाजी 3 महीने वहां रहते थे। अरे तुम अपनी बताओ, समझ में आया? तो वो 3 महीने दादाजी रहे गुरुदेव के पास, तो क्या तुम मुमुक्षु होगा इतने मात्र से? अंदर में मोक्ष की क्या कहें ज्योति, मुक्ति की प्राप्ति की ज्योति कितनी प्रज्वलित है हमारे भीतर, भेद विज्ञान की ज्योति का कणिका हमारे अंदर कितनी है। और यकीन मानिए, भेद विज्ञान की यदि हमारे भीतर में ललक नहीं है ना, तो आप अपने ऊपर कितना ही लेवल चिपका लो, वो कथित मुमुक्षुपना हमारा अहंकार बन सकता है, लेकिन हमारा कोई लक्षण नहीं बनता है। वो मुमुक्षुपने को अहंकार मत बनाओ, अपना लक्षण बनाओ। समझ में आया? और वो कौन है मोक्ष का इच्छुक? बिना भेद विज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो बोलो यहां पे हमें करना क्या है? ये गुरुवाणी मंथन शिविर में भी तो यही है कि एक बार भाई, तुम्हारे दादाजी ने जिसके लिए जीवन समर्पित कर दिया, यहां अपना धंधा दुकान सब बंद करके 4 महीने वहां चले जाते थे, और उस समय में सोनगढ़ जाना कितना मुश्किल काम था, जरा विचार करो। आज कठिन है सोनगढ़ जाना, आज है ना, जबकि इतनी हाई स्पीड ट्रेन चलने लगी है, आज भी कंपैरेटिवली कठिन है सोनगढ़ जाना। तो उस समय सोचो कितना कठिन हुआ करता होगा। समझ में आया? हम उस विरासत को कैसे जिंदा रख सकते हैं? क्या गुरुदेव को बिना सुने, गुरुदेव को बिना, मैं तो भाई इतना अभागा रहा हूं कि मुझे तो देखने नहीं मिले गुरुदेव, है ना। गुरुदेव के दिवंगत होने के 8 साल बाद तो मेरा जन्म हुआ है, लेकिन आज यदि एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि हमारे आसपास तत्व जब भीतर में उतरता है, तो वो तत्व भीतर में जाने के बाद कैसा जीवन परिवर्तित होता है, इसके लिए आपको आदि पुराण और महापुराण और पद्म पुराण में जाने की जरूरत नहीं है। आपके 50-60 साल पहले एक व्यक्ति ऐसा हो गया जिसने ये बता दिया कि तत्व भीतर में उतर जाए तो जीवन में कैसा आमूलचूल परिवर्तन आता है। घर छोड़ना कठिन काम नहीं है, भरोसा रखो इस बात में, कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों लाखों लोग या तो मजबूरी बस या द्वेष बस अपना घर छोड़ देते हैं, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। अपने आग्रह को बदल देना ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और जो व्यक्ति 40 साल तक किसी संप्रदाय विशेष में रहा हो, यदि उसके आग्रहों को छोड़कर वो बिल्कुल डंके की चोट पर इस तत्व ज्ञान को और दिगंबर मत को और दिगंबर संतों के चरणों में समर्पित हो जाता है, ये किसका प्रतीक है? ये तत्व भीतर में उतरने का प्रतीक है। ऐसा हमारे पास एक सबसे नजदीकी एग्जाम्पल आज पड़ा हुआ है, तो गुरुदेव श्री के माध्यम से। अब आप सोचो, अपने भीतर यदि वो मुमुक्षुपना, यदि हम गुरुदेव के भक्त कब कहलाएंगे? सिर्फ जय जयकार कर लेने से, या फिर उनकी फोटो लगा देने से, फोटो का विमोचन कर लेने से, इतने मात्र से, या फिर वो दृष्टि पा लेने से कि एक एक स्थान पर वो दृष्टि क्या है, कीमत तो उस दृष्टि की ही है ना। अब वो जब तक प्रतिपादन हमारे चित्त में, वो दृष्टि, वो समझ हमारे भीतर में नहीं आएगी, तो वो लोग कैसे अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ हम भी मुमुक्षु हैं। आज हमारे हाथ से जब मंदिर चले, ये देखो प्रसंगेतर बात है ना, लेकिन वो अचानक मुंह पे आ गई तो मैं बोले जा रहा हूं, है ना, इसलिए क्या करें। ये सही बात है बिल्कुल। जब तक इन बातों को सुनने समझने की एक निरंतरता, नियमितता नहीं होगी ना, तो हमारे संकुलों को, हमारे मंदिरों को बचा पाना भी बड़ा मुश्किल और कठिन पड़ जाएगा। अभी एक लाइन के पीछे आज हमें भी इस बात का अपने ऊपर स्वयं की समीक्षा करना पड़ेगा कि गुरुदेव की परिपाटी में चलने वाली हमारी चर्चाएं हो रही हैं कि गुरुदेव की परिपाटी के इतर जा रही है। क्योंकि उनकी परिपाटी और उनकी चर्चाएं तो शब्दशाह थी। अब उनको शब्दशाह ना लेकर हम अपनी परिपाटी के हिसाब से आगे बढ़ें। अब आप देखो आगे पीछे का कितना विषय अपने साथ समेटते हुए अपने विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं कि उसमें उन्होंने आयत सामान और विस्तार सामान्य की जो चर्चा, जो कि आगामी गाथाओं में आएगी या पूर्व गाथा में और पूर्व गाथा की टीका में आई थी, उसको लेकर यहां पर आया। अब आप यदि वो आगे पीछे का विषय ना पढ़ो तो आपको यथोक्त का क्या मतलब समझ में आएगा। यथोक्त क्या होता है? यथोक्त आत्मद्रव्य की संभावना क्या है? यथोक्त
अरे आत्मद्रव्य मतलब जिसने गुण और पर्याय दोनों को एक समय में संपूर्णता पीकर बैठा हुआ है, ऐसी उस समग्रता से वस्तु का ग्रहण करना, वो होगी आत्म स्वभाव की संभावना, आत्मानुभूति। और उस आत्म स्वभाव की संभावना के कितने अर्थ किए यहां पर देखो, आप नीचे देखिए, उसमें बताते हैं आत्म, ये बोल्ड अक्षरों में लिखा है, देखिए, आत्म स्वभाव की संभावना, ऐसा जो आत्म स्वभाव अनंत गुण और अनंत पर्याय का एक रूप द्रव्य है। क्या कह रहे हैं? क्या है आत्म स्वभाव? यथोक्त आत्म स्वभाव क्या? अनंत गुण और अनंत पर्यायों का एक रूप द्रव्य, वह आत्म स्वभाव, वह वस्तु है, उसकी संभावना अर्थात उसका अनुभव। यहां फुटनोट में संभावना के बहुत अर्थ किए हैं। देखो, फुटनोट को भी इग्नोर नहीं करते। यदि ग्रंथ में फुटनोट में कोई बात आई है ना, तो उसे भी यहां पर दर्शा रहा है। कौन कौन से अर्थ हैं? संभावना यानी संचेतन, अर्थात उसका चेतना, अनुभव करना, मान्यता, आदर, आहा, समझ में, इसका आदर, इसका संचेतन। और ये जो वस्तु है ये कैसी है? खंडित है कि गुण और पर्यायों को अखंड अपने में समाई हुई है, अखंड अपने में गर्भित की हुई है। ये देखो, वस्तु के ज्ञान से वस्तु की अनुभूति तक का सफर। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। समझ में आया ना? हालांकि श्रद्धा के बदल जाने से ज्ञान की जाति बदल जाती है, लेकिन उस श्रद्धा के लिए पुरुषार्थ कौन करता है? ज्ञान करता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, लेकिन इसके बाद के सारे सूत्र काय के लिए समर्पित हैं? सम्यक दर्शन की बात करना थी ना पहले अधिकार में, अध्याय में, लेकिन कितनी बात की सम्यक दर्शन की? 2 सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम और तन्नी सर्गाद अधिक माध्वा, बस बात खत्म। और वो तन्नी सर्गाद अधिक माध्वा भी क्यों लिखा? क्योंकि वहां पर उन्हें अधिगम पर जोर डालना था। वो सम्यक दर्शन कैसा होता है? निसर्गज और अधिगमज होता है। तो वहां पर जोर काय पे डालना था? अधिगम पर। इसकी टीकाओं में चर्चा की है, यहां निसर्गज भी जो होता है ना, वो भी अधिगम पूर्वक ही होता है। क्योंकि बिना देशनालब्धि के कोई सम्यक दर्शन तक पहुंचता है क्या? तो फिर देशनालब्धि में किसकी मुख्यता है? अधिगम की है कि नहीं? तो ये अधिगम काम किसका है? ज्ञान का काम है। देशना में किसका काम होगा? ज्ञान का काम होगा। तो श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ कौन करेगा? ज्ञान करेगा। अब बस तुरंत के तुरंत अगले सूत्र से पूरी चर्चा पहले अध्याय में ज्ञान की है कि नहीं? प्रमाण नय अधिगमा, है ना, या फिर नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, और फिर पूरे सम्यक ज्ञान के भेद और सब चर्चा काय की? प्रमाण की, नय की। ये चर्चा क्यों करना पड़ी? क्योंकि श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। अब ऐसे ही ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को जानो, तो ये जानना हुआ क्या? ज्ञान। लेकिन ज्ञान काय के लिए करना है? कि गुण पर्यायों को पीकर बैठा हुआ जो अखंड एक द्रव्य है, उसकी अनुभूति के लिए। तो आत्म स्वभाव की संभावना का मतलब क्या है? यदि हमें द्रव्य गुण पर्याय की सर्वांगीण समझ पैदा होगी, तो वो सर्वांगीण समझ हमारी अनुभूति में कन्वर्ट होगी। और ऐसी अनुभूति की प्राप्ति नहीं कर पाने वाला, उसे क्या कह रहे हैं? नपुंसक होने से। समझ में आया ना? आज भी उन्होंने 1-2 बार ये बोला, तो कई लोगों को ये लगता होगा ये तो महिला सशक्तिकरण के युग में, वुमेन एम्पावरमेंट के युग में जे नामर्द नामर्द कहने वाली बात क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है। समझ में आया ना? हम अपने आप को इस पर्याय से स्त्री और इस पर्याय से पुरुष माने हुए हैं ना, ये तो कह रहे हैं उस आत्म स्वभाव की संभावना से नकार है। लेकिन आत्म संभाव की संभावना का स्वीकार क्या है? कि जब अपने आप को इस पर्याय की स्त्री और पुरुषत्व से दूर हम आत्म स्वभावमय, समझ में आया, जिसमें वो सर्व पर्याय गर्भित हैं, प्रतिक्षण वर्तने वाली पर्याय, आयत सामान्य और विस्तार सामान्य, जिसमें गर्भित है, हम तो उस वस्तु की बात कर रहे हैं, उस एक अखंड वस्तु की बात कर रहे हैं। हमें ग्रहण तो उस एक अखंड वस्तु को करना है, लेकिन हम कहां पर अटक कर रह जाते हैं? किसी पर्टिकुलर अंश में।
और उस अंश को बताने के चक्कर में एक पूरी असमान जाति पर्याय को खड़ा किया और कहते हैं कि हमारी सारी विसंगतियों के मूल में यदि कोई अवलंबन छुपा हुआ है तो वो अवलंबन काय का है ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय। जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय का अवलंबन लेकर आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से गुरुदेव श्री के 2 दिन के लगभग 40 मिनट के व्याख्यान में अभी सिर्फ इन 2 लाइनों पर ही बात हुई है। अब चूंकि 2 लाइनों पर ही बात हुई है तो इसके आगे की लाइनों में, आगे के प्रकरण में क्या कहा जाएगा उसकी चर्चा जब प्रवचन में आएगी उसके बाद ही हम यहाँ पर उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।